Hello everyone, this is Priyasha, and today in this video we'll be talking about the case of US and Venezuela and why is it important for an MBA aspirant to know about this topic. See, current affairs for GDPI for MBA is slightly different when it comes to the information which you are asked to share in your personal interviews or the examples which you can quote in the group discussions. It becomes really difficult to cover all the important information in one place, right? Because not everyone knows about the news and is completely up to date. And अगर आप up to date हो भी तो necessary नहीं है कि you can link it correctly to the business world, MBA, international relations or something like that. तो मेरी कोशिश ये रहेगी that in this video I will try to give you a small gist or history of behind this entire case. I'll give you few MBA theories which can be of some help for you people so that you can learn about some theories beforehand also and apply it ताकि उससे आप उन्हें थोड़ा impress कर सको. Of course, we'll talk about the impact of this not just on India but on the international relations as well. What do we learn from it? How do we analyze any such case properly? Because वो क्या check करेंगे, वो ये check करना चाहेंगे कि ये बंदा कितनी अच्छी तरह से इसे एनालाइज कर पा रहा है, कितनी अच्छी तरह से सिचुएशन को समझ रहा है. So we'll talk about these things, okay? We'll talk about the pro con, we'll talk about something similar to this on this entire situation. So let's get started. The first thing which I want to talk about or give you a scenario of what is happening. So imagine a billionaire, right, who owns a gold mine but hasn't really paid his electricity bill for 20 years. आप समझ रहे हो सिचुएशन? मैं यहाँ इस बिलियनर की जो बात कर रही हूँ वो कोई नहीं बट वेनेजुला है. वेनेजुला है ऐसा बिलियनर जिसके पास ऑयल तो बहुत सारा है बट उसने दूसरी चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है. Now remember, the gold is still there but the machinery is rusted. US just removed that billionaire now. The question is for the investors, do we pay for the new machinery or will the billionaire's cousin sue us later? बस यही सिचुएशन है यहाँ. अभी क्या किया है यूएस ने, सबको पता तो होगा कि हुआ क्या है कि 3rd of Jan को यूएस ने हमारे जो वेनेजुला के प्रेसिडेंट है उनको और उनकी वाइफ को बहुत प्यार से यूएस ले आया था. See, keeping the jokes aside, the president Nicolas Maduro and his wife were actually seized. They were seized from their home, okay, on charges of narco terrorism. So please be careful कि उन्हें narco terrorism के charges पे US ले आया गया है. And this follows decades of hostility, of course we know, of a patrimonial state. So patrimonial state क्या होता है? Patrimonial state वैसा state होता है जिसमें जो लीडर है उसे लगता है कि मैं ही महान हूँ और इस पूरे कंट्री का, इस पूरे स्टेट का जो भी रिसोर्सेज है वो मेरे रिसोर्सेज है. नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट इट इज माई रिसोर्स. आई हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट. तो इस चीज को खत्म करने के लिए यूएस एक्चुअली डिड दिस थिंग बट यू नो द प्रोसीजर वाज नॉट करेक्ट. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, आपका वन लाइनर समरी क्या होना चाहिए. वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? सो उससे पहले पता करते हैं कि अभी इस सिचुएशन में क्या हुआ है. एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ है. अब यूएस पूरी तरह से तो उसके ऊपर हक नहीं जमा सकता, राइट? सो इन फ्यूचर this is going to be something which a businessman will look as a market friendly environment, probably क्योंकि अब इंडिया की बोल रही हूँ, वर्ल्ड की द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इज नाउ लुकिंग फॉर अ लीडर. एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम समझते हैं कि इस सिचुएशन को हम एनालाइज कैसे करें. तो इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल वॉइड. एक एमबीए थ्योरी जो मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ दैट इज कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनल वॉइड. सो इस इंस्टीट्यूशनल वॉइड में उसका मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल वॉइड का मतलब होता है when you see that the legal, political, and social institutions have collapsed. Now, here businesses learn to navigate in this high risk, high return environment. Of course, we know that बहुत risk है, but at the same time, अगर successful रहा तो बहुत high rewarding भी ये situation बन सकती है. तो ये high risk, high reward का एक perfect example है. But इसके साथ मैं आपको एक और भी MBA theory है जो यहाँ पे देना चाहती हूँ. And that MBA theory is called as the Dutch disease. You people should be aware of this thing.
ओके, चाहो तो आप इसे गूगल कर सकते हो आफ्टर दिस वीडियो. ओके, दिस इज कॉल्ड एज डच डिजीज. Dutch disease is basically a critical economics concept. When a country finds a natural resource, like in our case it is oil, its currency is strengthening, making all the other exports very very expensive. जैसे कॉफी, कोको, ये सब कुछ वेनेजुला से बहुत एक्सपेंसिव दामों पर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, and therefore they are destroying those industries completely in that country. So managers must understand this, okay, so that they can manage their diversification risk properly. तो ये जो diversification है, इसके ऊपर आपकी एक एमबीए की क्लास लग सकती है यहाँ पर, राइट? तो अगर आप इस चीज को हाईलाइट करते हो तो आप डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स उठा के जाने वाले हो, कि आप यहाँ से बोल सकते हो कि वेनेजुला के इस केस से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे किसी भी कंट्री में, किसी भी कंपनी में डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी इन्वेस्ट करते हो तो यू नो कि व्हाई हैविंग अ डाइवर्स पोर्टफोलियो इज व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट एंड लेस risky thing to do. Now, what is a business impact? So understand this as a opportunity cost, people. Okay, while Venezuela holds the world's largest oil reserves, more than 300 billion barrels, right, what it is lacking is called as capex. You all know about capex. Capex is the capital expenditure to extract that oil. Companies like Chevron, Reliance, they are all looking at brownfield investments, reviving the old infrastructure rather than building new ones. क्योंकि उन्हें वेनेजुला में आने से डर लग रहा है. Literally at this situation, no one is ready to go there. ठीक है. तो गुड बात तो ये है कि चलिए, पोटेंशियल फॉर वेनेजुला टू री एंटर द स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम इज व्हाट इज विजिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट द सॉवरेनिटी रिस्क इज वेरी हाई. इसका क्या मतलब है? any new government will inherit a debt over 150 billion dollars at this point of time. तो वेनेजुला के अभी जो सिचुएशंस चल रहे हैं, तो कोई भी अभी न्यू गवर्नमेंट आएगी तो उसको पहले पुराने डेट को ठीक करना होगा, उसके बाद ही वो कुछ आगे कर सकती है. So what I want you people to make a summary on this situation is, try to understand and link it directly to the business world. आपको क्या लगता है कि इस केस की वजह से बिजनेस वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सीधी सी बात है, अगर इतना वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है, तो किस चीज पे सबसे बड़ा रिस्क पड़ेगा? एफडीआई. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई? इट्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो मेरी अभी सबसे ज्यादा रिस्क पे चल रही है. ओके, करेंटली फॉरेन की कंपनीज यहाँ क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगी जहाँ पे इतनी वॉलेटाइल सिचुएशंस चल रहे हैं? तो ये रिस्क है जो कि सबसे बड़ा बिजनेस इम्पैक्ट है. ओके, they fear the getting into the business in Venezuela. Second thing, India के context में क्या problem देखने को मिल रहा है? Of course, we all know that India is a major importer, right? Major importer of heavy crude. और एक मेजर इंपोर्टर को डेफिनेटली फर्क पड़ने वाला है कि उसका जो रिसोर्स है वो चेंज होने वाला है, या फिर वो स्टेबल होने वाला है या वो अनस्टेबल होने वाला है. वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा जब ट्रम्प सर हमें बताएंगे कि इसके आगे क्या होने वाला है. बट याद रहे कि अभी करंटली इंडिया की डिपेंडेंस थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है मिडिल ईस्ट की तरफ, अगर वेनेजुला अभी तक सिंप्लीफाई नहीं होता है तो दैट इज वन कॉन्टेक्स्ट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली कि अगर आपको एक मिडिल ग्राउंड लेने के लिए बोला जाए, और यू आर सपोज टू गिव अ मिडिल ग्राउंड और लेट्स से जियोपॉलिटिकल आंसर, कि आप इसमें क्या आपको लगता है यूएस ने सही किया या वेनेजुला के अभी क्या कंडीशंस चल रहे हैं, हाउ वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट इट? सो यू कैन मेंशन दैट. See, I would say that the thing which happened is correct because Venezuela को रोकना तो जरूरी था ही, but you would support a more UN monitored transition here. So your diplomatic answer should actually say this, that भाई मैं तो यहाँ पे सपोर्ट करती, लेकिन मैं एक यूएन मॉनिटर्ड ट्रांजिशन को सपोर्ट करती. यूएन मॉनिटर्ड होता तो ऑब्वियसली इस तरह से उन्हें बीच रात में उठा नहीं लेते, बट यू नो दीज पावरफुल पीपल, आप उन्हें किसी और वे से लेके भी नहीं जा सकते हो. rather than a US led military oversight, I would rather go with a UN monitored transition. But I view Venezuela situation as a classic case of political risk management. Political risk मैनेजमेंट, आप इसे पॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट का केस कह सकते हो. And for an MBA, it highlights how geopolitical shifts can overnight transform
a paria market into a frontier opportunity. If you don't know what paria market is, Google it. But then see, I'll definitely tell you, I can help you in that. पारिया मार्केट के केस में सी गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि उसे पारिया का मतलब आउटकास्ट होता है। तो कुछ पारिया स्टेट्स होते हैं जिन्हें हम आउटकास्ट समझते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया। जो भी स्टेट किसी भी वे में कुछ गलत करती है, आई मीन गलत इन द सेंस आउट ऑफ द ह्यूमन रूल्स और लॉज करती है, तो हम उसे अलग आइसोलेट कर देते हैं। जैसे लेट्स से इंटरनेशनल कम्युनिटी में अगर आप ह्यूमन राइट अब्यूजेस कर रहे हो, या टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो, या इंटरनेशनल लॉज ब्रेक कर रहे हो, या न्यूक्लियर वेपन्स इलीगली बना रहे हो या उसका यूज कर रहे हो, then it leads to isolating that particular country completely, and that is where North Korea comes. Okay, Pakistan also comes. तो इन लोगों को अलग इसलिए कर दिया गया, ईरान को भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप, उन्हें अलग इसलिए कर दिया गया क्योंकि वो इन सारी चीजों से अलग है। तो वेनेजुला के केस में भी यू आर लुकिंग एट इट कि भाई एमबीए, एज एन एमबीए ग्रेजुएट आई शुड बी रेडी कि कभी भी ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है, ऐसे जियोपॉलिटिकल शिफ्ट के लिए क्या हमारी कंपनी रेडी है या नहीं रेडी है। तो आई गेस अगर आप बस इतना बोलते हो ना, तो मुझे लगता है कि सिर्फ यूएस और वेनेजुला के इतने केस को जानकर भी आप एक बहुत अच्छा स्टैंड और ओपिनियन ले सकते हो, नॉट जस्ट इन योर जीडी बट इन योर पीआई एज वेल। एंड अगर आपको ऐसे और भी करंट अफेयर्स चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई वुड लव टू मेक अ स्मॉल एक्सप्लेनर वीडियो फॉर यू। एंड आई होप आई कनेक्टेड ऑल द डॉट्स, आई कनेक्टेड द डॉट्स ऑफ हाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया, बिजनेस रिलेशंस, कुछ इससे रिलेटेड एमबीए थ्योरीज जो मैं आपको बोल सकती थी, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी हिस्ट्री बता दी, इसे थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया, आपको एक मिडिल ग्राउंड या डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दे दिया जो आप बना सको, यू नो, उससे रिलेटेड कुछ बोल सको। And if this really helped, then please do like this video and please comment below and let me know if you really like this video. And yes, share it with more and more people so that the channel grows, guys. And if you're new to the channel, do consider hitting that subscribe button. That really, really helps. Thank you so much for all your love and support. See you in the next video. Till then, take care and all the very best.